پاکستان ابراہیم مسلم رحمان صاحب تشریف حاضر ہیں. آپ بات بیٹھ جائیں, سب بیٹھ انتظامی کدھر ہے؟ لبیک والے بھی خاموش, سب خاموش, انتظامیہ پر بھی نہیں, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اہل سنت و جماعت میں اور بہت سی جو کمزوریاں در آئی ہیں ان میں سے ایک بد نظمی بھی ہے. آپ ایک جلسہ نظم و ضبط کے مطابق ساتھ نہیں کر سکتے, ان کون سے ہماری ایسا کریں گے آپ کہ ایک مہمان کو بلایا, اسٹیج پر پہنچنا ایک مسئلہ بن جائے, کیونکہ ہر شخص لیڈر, ہر شخص آٹومیٹک منتظم, اور اہل سنت کا کوئی جنازہ بھی کبھی ڈسپلن سے نہیں ہوتا. اشخاص آتے بندے آگے آ جائیں گے, علماء آگے آئے ہیں, مشائخ آ گئے ہیں, فلاں آ گئے ہیں, آپ اس سے آگے کیا. تو جو خاموشی اور نظم کی کے لیے اشارہ نہ کر سکے وہ دنیا کے کس کام کے لیے کرے گا. اس لیے اطمینان کے ساتھ سنیں, مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, توجہات کی ضرورت ہے. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے میں اپنے ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو, ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے, جسمانی ساخت ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے, نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے, تمام پرزے آرڈر میں ہوں, لیکن پروڈکشن نہ دے, تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. اس ویک کا سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے ہیں, اور وہ ہمارے جو محبوب ہیں اور ممدوح ہیں, مفتی اعظم پاکستان, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کہلوانے والے تینوں فرقوں کے مشترکہ نمائندہ سپریم کورٹ میں, مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے ان کی حفاظت فرمائے, وہ کل رات کو ہمارے اس چھوٹے سے شہر جیلم میں تشریف لائے. پوری زندگی نہیں آئے, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیلم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہ لوگ تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں. جیلم شہر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ 2 کلومیٹر کا ریڈیس لے کے ایک سرکل ڈرا کریں نا تو پورا شہر ختم ہو جاتا ہے. ضلع جیلم بہت بڑا ہے, وہ تو آپ 1.5 گھنٹے بھی سفر کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا, لیکن جو جیلم سٹی ہے نا وہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اتنے چھوٹے شہر کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے, اس کے پیچھے بھی اللہ معافی دے آپا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ وہ ان کی منت مار مار کے کہ جیلم میں اتنا بڑا فتنہ ہے, آپ کو آنا چاہیے, اور یہ اس طریقے سے ان سے ٹائم لیا. اور فرنٹ کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے جو کاز رکھی تھی وہ ختم بخاری, اس میں دستار بندی کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا, اور یہ پروگرام آلموسٹ کوئی 3 ہفتے پہلے فائنل ہو چکا تھا, اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کی پوسٹ بھی بن چکی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا ختم بخاری اور دستار بندی. اس وجہ سے میں نے اسے موضوع بحث نہیں بنایا, میں نے کہا اپنا پروگرام کر رہے ہیں, جس طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا یہ کرتے رہیں گے. مجھے بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اس میں مجھے جان بوجھ کے گھسیٹا جائے گا, اس لیے میں نے اسے موضوع بحث نہیں بنایا. انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ وقت گزرنے کا انتظار کیا, پوسٹر پورے جیلم شہر میں لگائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے, اتنے مہنگے. جب پچھلی اتوار گزر گئی نا, انہیں پتا تھا کہ اب انجینئر صاحب نے اگلی اتوار کو بولنا ہے, تو اس دوران ہم اپنا کام ڈال دیتے ہیں. جس طرح وہ ایک کراچی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا تھا, اور پنڈی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا, بلکہ اپنے فرقوں کے ساتھ کام ڈلوایا. اس کے بعد کتنے لوگ فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ بریلویہ کو چھوڑ کر الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کام یہ ڈالا کہ اتوار سے گزر گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی, بمشکل 2-2.5 منٹ کی, اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, اور ساتھ تھمبنیل کے اوپر میرا نام لگایا, اور اس میں مجھے آفیشلی دعوت دے دی کہ آپ اپنے بچپن کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں, مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کر لیں. چھوٹے بیٹا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجیے, اور چھوٹے بیٹا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجیے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجیے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجیے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے پوسٹر پہ نہیں لگائی ہوئی تھی. اب میرے لیے امتحان تھا کہ میں آج اتوار کا انتظار کرتا 26 جنوری کا, تو 25 کو تو پروگرام ہو جاتا. تو جس طرح پہلے 2 مفتی اکیلے جو ہے وہ بھاگ کے تو اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر گئے, اور انہوں نے کہا ہماری وکٹری ہوگی, تو یہ مفتی صاحب کے کیس میں بھی یہی ہونا تھا. تو ہم نے دار ارکم اپنی اکیڈمی کی جو کور ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا. سب کا خیال یہی تھا کہ ہمیں مفتی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے, اور مفتی صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, ظاہر ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے,
बाकी जो कराची का मुफ्ती था या पिंडी का मुफ्ती था वो तो लोकल मुफ्ती था, ये तो वाकई ऐसा मुफ्ती है कि जो तीनों फिरकों का नुमाइंदा है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस का, जो सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए हैं अपने निजाम के अंदर, हालांकि सुन्नियत के साथ इनका क्या लेना देना। तो पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए और उन्हें ऑफिशियली हम दावत दे दें। उससे भी पहले मैंने जरूरी समझा कि हम मुफ्ती साहब के लिए गिफ्ट्स भिजवा दें। वो गिफ्ट्स वैसे तो हमने प्रोग्राम के अंदर देने थे अगर ये मुनाजरे वाला लुचना फ्राई हुआ होता। वो 3 हफ्ते पहले ही मैंने जो अकेडमी के अमीर है नदीम रियाज भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैंने कहा कि आप इस तरह की ये गिफ्ट लादा करते हैं मुफ्ती साहब को, आपने जाके प्रोग्राम में देने हैं, क्योंकि उस वक्त तक मुनाजरे वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ये वीडियो आई उसके बाद तो जाहिर है कि इनको भी एलानिया वहां पर भेजना बरेलवी वहां के अंदर, तो उनकी भी लाइफ वल्नरेबल करने वाली बात थी, क्योंकि डिक्लेयर था ये मामला। वैसे तो मेरे वाले साहब भी प्रोग्राम में गए थे, क्योंकि इन्होंने बाद में जब देखा कि मैंने गिफ्ट दिए तो इन्होंने बुला के मेरे वाले साहब को मेरे नाम का अलग से एक दावतनामा दिया, वाले साहब के नाम का अलग से दिया। मैंने कहा इसकी तो जरूरत नहीं, आप वीडियो में पहले दावत दे चुके हैं। तो फिर वाले साहब कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा आपको कोई उधर जानता नहीं है, इस तरह आम लोगों को तो नहीं पता आपके बारे में, आप चुप करके चले जाएं। आपको वहां पे ऑफिशियली इस हवाले से प्रेजेंटेशन जरूरी है कि हमारे मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, यानी अगर इकामत हो रहा है उस मस्जिद में तो मैं तकबीर उला पकड़ सकता हूं। हाँ, 100 फुट का फासला भी नहीं है मेरे घर से उस मस्जिद का, और वाले साहब उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, और मेरा पूरा बिल्टअप उसी मस्जिद में हुआ है बचपन से लेकर 31 ईयर्स की एज तक। सारे के सारे मामला उसी मस्जिद के साथ है, ज़ाहिर है हमारी तो एक अकीदत भी वाबस्ता है। तो मैंने अबू से कहा कि आपने जरूर जाना है, आपका कोई मसला नहीं है, आपको कोई उस तरीके से जानता नहीं है, इस हवाले से कोई आउटसाइडर रहे ये लोग तो ज़ाहिर ये तो रिस्पेक्ट देंगे, वो एक मोहल्लेदारी वाला मामला भी है, और वैसे भी मेरे वाले साहब एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। बाकी हमने चंद स्टूडेंट्स को भेज दिया था ताकि वीडियो वगैरह वहां जाकर बना लें। उस तरह वापस आए कि एकेडमी के अमीर को मैंने रिक्वेस्ट की कि अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपका उस दिन जाना आपके लिए भी एक थ्रेट वाला मामला है, तो आप 2 दिन पहले ही चले जाए। तो जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद वहां जो मुबैना रैप थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी उनसे राब्ता करके वहां पर पहुंच गए और उनको जाके वो गिफ्ट भी दिए। और ये मुफ्ती साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने गिफ्ट कबूल किया, इसलिए उनकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। उसमें खत्म नबूवत की किताब थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़ाइल दुरूद सलाम वाली किताब थी, रिसर्च पेपर्स थे, एक इत्र था अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड, जो जबरदस्ती कभी कोई यहाँ पे गिफ्ट दे जाए तो वो हमने अपने तोशाखाना में जमा किए होते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि जब कभी हमें किसी को गिफ्ट देना पड़े तो वो अमीर साहब निकाल के तोशाखाना में से देते रहते हैं। तो वो अच्छा खासा महंगा इत्र था, तो वो मुफ्ती साहब के शान शान था, तो मैंने कही भी इनको दें, और इसकी पिक्चर भी बनवाएं इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया। और वो हमने जुमेरात की रात को ही अपलोड कर दी ताकि कोई ये ना कहे कि इन्होंने मुफ्ती साहब को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया। प्लस हमने ये इरादा किया कि जुमे की नमाज के बाद हम एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे ऑलमोस्ट आधे घंटे की, जिसमें अपना मुकदमा रख देंगे और मुफ्ती साहब को ऑफिशियली वीडियो में भी दावत दे देंगे। इस दौरान हमने एक अकलमंदी ये भी की, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों की अक्ल स्टार्ट होती है। और वो जुमेरात से भी एक दिन पहले हमने अली आबिद भाई जो है हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने पहली दफा मुफ्ती साहब का इंटरव्यू लिया और उसमें हैरानकुन तौर पर उन्होंने फौरन एक ऐसा सवाल फेंक दिया कि जो मुफ्ती साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका मुंह भी खुला रह गया। आपने देखा है? अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आप इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहते हैं, पहुंचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़रबाजी का बहुत शौक है, वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चंस पहले दिखाए थे उनमें वो सवाल नहीं था। इनको पता था कि लिखा तो कटवा देंगे, तो इन्होंने फौरन वो सवाल किया, लेकिन शुक्र है बाद में मुफ्ती साहब ने नहीं कटवाया, ये बड़ा अच्छा हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि जी नीने साहब आपसे मुनाज़रा करना चाहते हैं, ये उनसे मिसहैंडलिंग हुई, मैंने बाद में गिला भी किया। मैं मुनाज़रा नहीं करना चाहता, आज तक हमने किसी को मुनाज़रे का चैलेंज नहीं दिया। हम हमेशा इल्मी चैलेंज देते हैं कि वीडियो में जवाब दो। मुनाज़रे के चैलेंज तो इनके छोटे हमें करते थे, तो हमने कहा था कि ठीक है अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपने बड़े को लॉन्च करो। अब ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। हमें क्या शौक है कि सामने बैठ के मुनाज़रा करें, हमने तो लिख कर दिया हुआ है कि इसका कोई फायदा नहीं होता, एंड में दोनों एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं, निकलता कुछ भी नहीं। आज तक किसी मुनाज़रे का फैसला हुआ है, इल्मी दलाइल रखें। तो इनकी ख्वाहिश में मैंने कहा था कि ठीक है बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि तुम्हारे बकौल हमने एक फिरका लॉन्च कर दिया है, उस फिरके के बड़े फिर हम हुए। अगरचे हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, चंदे तुम्हें देते हैं जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं, तुम्हें मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे सामने बैठ के जुम्मे के खुतबों में गालियां खाते हैं, उसके बावजूद तुम लोग इस किस्म की हरकत करते हो कि ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हो कि हमारी लाइफ को वल्नरेबल कर देते हो। छोटा मिर्जा, मैं तुम दसा छोटा मिर्जा जिसमें तुम बड़ा मिर्जा कह रहे हो, भी तुम्हारे बुजुर्गों की जायज औलाद सी, तो हमारी तो इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं होती है। बहरहाल मुफ्ती साहब से जब सवाल किया उन्होंने, अली आबिद भाई ने, वो भी इंजीनियर है, कि इस तरीके से मुनाज़रे वाला कोई सीन बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौकिफ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। वो अपना काम करे, ऐसे लोग जो है वो फेम के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी मुफ्ती साहब ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि ये कोई ऐसा फितना है कि इसके ऊपर मुफ्ती साहब को बाहर निकलना चाहिए, जबकि इनके मानने वाले कहते हैं दज्जाल से बड़ा फितना है।
इन सारी तारीख में इतना बड़ा फितना नहीं आया। वो पीर अफजल कादरी कहता था, जो अपने जान को पहुंच चुका अपने बुजुर्गों के पास, जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी। लेकिन ये बड़े मुफ्ती कभी भी इस तरह का जुमला नहीं बोलेंगे। ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो देवबंदियों के मुफ्ती आजम है, कभी उन्होंने ऐसा कोई जुमला बोला मेरा नाम लेकर, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। ये भी उनको उकसाया, उनका ठीक है वो अपना काम करे, यानी हम को एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह बाकी फिरके एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि मुफ्ती साहब के साथ मेरा जबरदस्ती का कोई मुनाजरा रखा जाता। इसलिए मुझे पता था कि ये शख्स जो जेल में मुबैना रैप है, ये अपनी मशहूरी के लिए और अपने प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए कि ज्यादा पब्लिक आ जाए, ये सारी ड्रामाबाजी कर रहा है। फिर भी हमने मुफ्ती साहब से राब्ता किया उसी एंकर के थ्रू, बुध वाले दिन, यानी प्रोग्राम होना था हफ्ते को, बुध वाले दिन ही राब्ता कर लिया। उसके बाद जुमरा जुम्मा हफ्ता 3 दिन मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती साहब को डायरेक्ट फोन किया। मुफ्ती साहब से उन्होंने एक जुमले में सवाल पूछा कि क्या आप मुनाजरे के लिए जेल जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। एक टिकट में 2 मजे ले लिए। मुनाजरे का इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि जब मुनाजरे का सवाल हुआ तो पहला जवाब यही बनता था मैं मुनाजरे के लिए नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मैं जेलम जा रहा हूं दस्तार बंदी के लिए और खत्म बुखारी के लिए। तो इसका मतलब हमें एक शरीफ इंसान से यही समझना चाहिए कि वो मुनाजरे के लिए नहीं आ रहा। हां, अगर वो चलाकी कर रहा है तो वो ऐसा जुमला बोल रहा है कि जिसके 2 माने बनते हो, जो उलमा अक्सर तौरिया करते हैं। मुफ्ती साहब एक शरीफ नफ्स आदमी है, मैंने उसको इसी तरीके से लिया। लेकिन मुझे खतरा था कि बाद में ये भी इन कराची के मुफ्ती और पिंडी के मुफ्ती की तरह अपने आपको फातिहा डिक्लेयर करते हैं। तो हमने फिर भी एहतियातन वीडियो बनाई और मुफ्ती साहब से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो में आकर इस चीज को डिसऑन करें या ऑन करें कि आप किस लिए आ रहे हैं। उससे अगले दिन हमने मीर साहब को गिफ्ट के साथ भेजा, तस्वीर लग गई। उसकी पूरी रुदाद हमने रोमन इंग्लिश में लिखी ताकि इंडिया में रहने वाले मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान भी आसानी से उसे पढ़ सकें, क्योंकि वो नस्तलीक उर्दू का रस्म खत पढ़ नहीं सकते। उर्दू समझ लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, तो रोमन में लिखा ताकि कोई एम्बिग्यूटी बाकी ना रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया कि ऑलमोस्ट आप समझ लें 1.5 दिन के अंदर वो वीडियो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। मेरे ख्याल सब देख चुके हैं। जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई थी कोई कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं चला। और ऑफिशियली हमारी दावत उनके यहां आने से 1 दिन पहले ही अपलोड हो गई वीडियो की शक्ल में। और हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा कि उसमें कोई कमजोर पॉइंट निकाल सके। मैंने कहा कि आप यहां तशरीफ ले, मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज है और आपकी पब्लिक आपको पता है, और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं। अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके, और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। लबैक वाले खामोश, सब खामोश। इंतजामिया पर भी नहीं है, सब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। पहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज्म ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते, कौन सा हमारी ऐसा करेंगे आप कि एक मेहमान को बुलाया, स्टेज तक पहुंचना एक मसला बन जाए, क्योंकि हर शख्स लीडर, हर शख्स ऑटोमेटिक मुंतजिम, और अहले सुन्नत का कोई जनाजा भी कभी डिसिप्लिन से नहीं होता। उसको हाथ बंदे आगे आ जाएंगे, उलमा आ गए हैं, मशाइख आ गए हैं, फलां आ गए हैं, आपको किसने आगे किया? तो जो खामोशी और नज्म की के लिए इशारा न कर सके वो दुनिया के किस काम के लिए करेगा? इसलिए इत्मीनान के साथ सुने, मुझे नारों की जरूरत नहीं है, तवज्जुहात की जरूरत है। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। तो हमने कहा कि आप यहां तशरीफ ले, रात को आपने 11, 12 या 1 बजे तक फारिग होना है, तो जाहिर उसके बाद आप कराची तो नहीं जा सकते, आराम करेंगे। सुबह सवेरे आप अकेडमी आ सकते हैं, 10 बजे आ जाए, कोई मसला नहीं। यहां हमारे पास ऑफिशियल सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो आप आए, आपको यहां ऊपर उठाएंगे, मैं नीचे बैठूंगा। अगर कोई इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी करें, और अगर नहीं तो आप अपना मौके रखना चाहते हैं वो भी आके चले जाए, कोई मसला नहीं। मैं बाद में वीडियो में जवाब दे दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। कोई यहां पे मुझे गालियां भी निकाल के चला जाए तो मैं बाद में वीडियो में उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। हमारा तो सारा ऑनलाइन काम है दावत का। तो उसमें मैंने कहा कि आप तशरीफ लें और आगे गुफ्तगू कर लें। उसका फॉर्मेट भी मैंने रख दिया कि अगर आप इल्मी डिस्कशन मुजादला चाहते हैं तो वो भी 10 मिनट में आप अपना मौके रखें, मैं 10 मिनट में उसे रिबटल कर दूंगा, फिर 10 मिनट में मैं अपना मौके रखूंगा, अगले 10 मिनट में आप रिबटल कर दें। 40 मिनट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी दोनों तरफ से और पब्लिक फैसला कर लेगी जब इंटरनेट के ऊपर चढ़ेगी। ये भी मैंने फॉर्मेट रख दिया। फिर मैंने अगली ऑफर दी कि अगर आप नहीं आ सकते कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन आ जाए। अगर ऑनलाइन नहीं आ सकते तो मैं इतने अरसे से वीडियोस में आपके अकायद और नजरियात के ऊपर चीजें रिकॉर्ड करवा रहा हूं, वीडियो में उसका जवाब दे दें। तीसरा ऑप्शन भी रख दिया। चौथा ऑप्शन भी रख दिया कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से, तो किसी को रैप नामजद कर दें और वीडियो में कह दें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो वो आप किसी मोहल्ले के आम इमाम मस्जिद को भी खड़ा कर देंगे। मेरे लिए वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों का बड़ा होगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर इनको बड़ा लॉन्च किया है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के हवाले से जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ कि वो यहां पर नहीं आए, रात को मेरा जिक्र तक नहीं किया 1.25 घंटे की तकरीर में, इसके बाद मैं जीत गया। नहीं, ये ऑफर अभी भी मौजूद है। कराची जाएं, तसल्ली से सोचें, जो आप करना चाहते हैं करें। और ये भी आपकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई शौक नहीं है
कि मैं आप लोगों के सामने बैठाऊं। हमारी दावत तो अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू दावत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसका रिएक्शन यह है कि इस छोटे शहर में इतने बड़े मुफ्ती को लाना पड़ा। शुक्र है ये शहर एक तरफ से झुक नहीं गया, जितना वज़नी मुफ्ती बुलवाया था उन्होंने इल्मी तौर पर। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई। और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है, और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था, जरा साथ ही मस्जिद है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी, बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। जो लोग कहते हैं सिर्फ कुरान ही काफी है और हदीस को नहीं मानते, मुनकरीन अहादीस, उनके ऊपर उन्होंने नक्द की। अच्छा खासा हिस्सा इसके ऊपर लगाया, बड़ी शानदार गुफ्तगू थी। और जो कुछ मैंने नक्द किया हुआ है ना अपनी वीडियोस में, उसका सिर्फ वो 20% था, यानी उन्होंने कोई नई बात नहीं रखी। वो ऑलरेडी हमने एक एक चीज रिकॉर्ड करवा दी हुई है, उसको उससे भी बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता था। बहरहाल उन्होंने वो अच्छे तरीके से डिस्कशन की। उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को भी डिस्कस किया, औरत मार्च के हवाले से भी डिस्कशन की, और पाकिस्तान में जो मीडिया का किरदार है कि वो हमेशा इन फिल्मी एक्टर्स को हीरो बना के पेश करता है, इसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। नात खानों के ऊपर जो उनका एक महबूब मशगला है, उनके ऊपर नक्द की कि हम इन कवालों को, नात खानों को पैसे लुटाते हैं, हमें चाहिए मदारिस में पैसे दें। और इसी तरीके से नुसरत फतेह अली खान के ऊपर भी उन्होंने फतवा लगाया कि वो इंडिया गया और उसने वो कलाम पढ़ा, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। इसको उन्होंने मौजूद बहस बनाया। इस किस्म के कई टॉपिक्स उन्होंने उसके अंदर कवर किए, और उन्होंने ये भी बताया कि मदरसे की जो डिग्री है ये कब्र में और आखिरत में भी काम आएगी। बिल्कुल ठीक है, अगर उस डिग्री के मुताबिक अमल किया तो। और जो यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज है, इनसे नौकरी मिल जाए तो ठीक, वरना एक कागज का पुर्जा है। नहीं सर, कागज का पुर्जा नहीं है। यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज का यह फायदा है कि इंसान का